आइए और फिर से हम सबों को रोमांचित कीजिए और कुछ ज्ञान दीजिए न्यूट्रालाइट का। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू महागुरु। और गुड आफ्टरनून अगेन। So friends, we have such a wonderful blessing from our Mahaguru and so many successful people in this business. All the emeralds giving such a good advice to us and then showing path how to do it. Just you just look at them and have your wish in your mind, write your wish in the paper, write your dreams in the paper, stick to the walls and ceilings wherever you want, and look at those faces, successful faces of emeralds, diamonds, and double diamond, and Mahaguru, Premba sir, Om Prakash Babu, and so many successful people. Just have picture of them around you. I can guarantee you, I'm not doing this business. I have picture of these successful people in the places where I sit, where I work, and where I stay in my house. And those vibes, those those invisible forces are doing business for me and giving strength to me to stand for this the amazing business. And I can say you that this is not the business where you do business for the money only, and business is never done for the money. I can tell you, business is done for solving some need, desire, or the problem of the society, of the people you are surrounded by, the people inside your house, outside your house. So you are solving those three: need, desire, and problem of the society. And this drives you to do business. Business and shop keeping are two different things. One sells product and another solves problem of the society. So here I am for a reason to solve the need, desire, and problem of the society as far as I can. And I wish you all will join this business. Those who have not joined and those who have already joined will move ahead in this business to solve need, desire, and problem of this business. So coming to the need, desire, and problem, being a doctor, my primary desire to solve this problem of the society as far as I can is the health problem. And Amway comes with so many amazing products that will guide you to have such a wonderful state of health. And it actually gives you opportunity to have a complete definition of health, to attain the complete definition of health. As far as an individual you are concerned, you will have good health. So beginning with the health, I am as a doctor, and I would like to have all my patient attendants and everyone I know be in good health, and I would like to spread the same message from your side, and the business will come along with this message. So beginning with how Amway is helping you, other than those products which are very healthy for cleaning and other things, the Amway's product indirectly or directly helps to maintain your health. Beginning with the health, I'm focusing myself on the Nutralite because मैं Nutralite से amazed हूँ. Nutralite से क्यों amazed हूँ? क्योंकि जब आप हेल्थ की बात करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं, या हेल्थ को सस्टेन मेंटेन करने की बात करते हैं, या किसी बीमारी से बाहर आने के बाद दोबारा उस बीमारी से ग्रसित ना हो जाए और कोई बीमारी से ग्रसित ना हो जाए, उसके लिए जो भी एफर्ट लगाते हैं वहां मेडिसिन कोई काम नहीं आता है. You take medicine to cure disease, not to prevent yourself from the disease. You take nutraceutical and nutritional intervention to prevent yourself from disease, to maintain your health, and to stop being ill each time you face your body or you faces problem with such days. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे इस समाज को, अपने आप को, अपने घर को healthy रख सकते हैं by using making a habit of using this Nutralite product and telling other people that Nutralite will help you in such a way that you can be healthy, you can maintain your health, and you can remain healthy for long and long.
सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि किसी भी हेल्थ केयर का जो बेसिक मापदंड है कि आपके जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है, जो आपके शरीर में जो मेजर अंग है, वो सही से काम करें। कैसे काम करेंगे, कैसे उनकी एजिंग होती है, क्यों लोग बीमार पड़ते हैं। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, मैं पहले सबसे पहले हृदय से शुरुआत करता हूं। हार्ट डिजीजेज, यू नो, एक समय था जब जो अंडर डेवलप्ड कंट्री थे या जो डेवलपिंग कंट्री थे, वहां पे हृदय की बीमारी कम हुआ करती थी। और आज एक समय है जहां पे हर वो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री जो है, वहां पे हार्ट की डिजीज बढ़ गई। इसका मतलब कुछ बदलाव तो हुआ ऐसा, जो हृदय के रोग इतने ज्यादा होने लगे। तो क्या कर सकते हैं हम उसको रोकने के लिए? क्या बदलाव हुआ? हमारे खान पान रहन सहन में ऐसा बदलाव हुआ जिससे हम जो भोजन ले रहे हैं, या तो वो बेसिक न्यूट्रिशन में कम है, या उनमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो इतने डेफिशिएंट है या मैनिपुलेटेड है। जो आप खा रहे हैं पहले तो वो सही नहीं है, उसकी मात्रा सही नहीं है, उसका क्वालिटी सही नहीं है। और अगर वो क्वालिटी और मात्रा सही नहीं है तो वो आपके शरीर में जाता है, आपके शरीर में एक माहौल पैदा करता है, एक इन्वायरमेंट पैदा करता है जहां पे ढेर सारा इन्फ्लामेटरी, मतलब फ्री रेडिकल जनरेट होता है। एक आपके शरीर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे कहीं चोट लगने के बाद कोई अंग सूज जाता है, आपके शरीर का माहौल इन्फ्लामेटरी होता है। इस इन्फ्लामेटरी इंटरनल इन्वायरमेंट में जब डिफरेंट ऑर्गन सेल्स में ये टॉक्सिन जाते हैं, इन्फ्लामेटरी मिल्यू जाता है, उस ऑर्गन में इन्फ्लामेटरी चेंजेस करता है, और एंड रिजल्ट होता है कि आपके ऑर्गन सिस्टम अर्ली एजिंग हो जाती है, उसमें अलग अलग पैथोलॉजिकल प्रोसेस सेट इन हो जाते हैं और आप बीमार होने लगते हैं। हार्ट की बात करें, आज 20 साल का बच्चा अगर कार्डियक हार्ट अटैक आ रहा है, उनको एसटी एलिवेशन एमआई हो रहा है, 20 साल के बच्चे को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसका कारण कुछ तो जरूर होगा। इस कारण का जवाब कभी भी दवा नहीं है। दवा तो तब होता है जब आप हार्ट अटैक हो जाता है, उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं। तो क्या किया जाए कि ये 20 साल 25 साल की उम्र में जो हार्ट अटैक आ रहा है वो नहीं हो। हार्ट अटैक के जो मुख्य कारण है, आपके शरीर में अगर आप स्मोकर हैं और गलत खाना खाते हैं तो आपके शरीर में एक इन्फ्लामेटरी मिल्यू बन जाता है, एक सब्सटेंस ऐसा रिलीज होता है, एक माहौल ऐसा बन जाता है जो आपके खून के नली, खून के थक्के को जमा करने लगता है। कैसे तोड़ा जाए उनको? अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर लिया है, आपने प्रोटीन की मात्रा सही ली है, सो दैट जो फाइट करने वाले एलिमेंट्स हैं वो सही मात्रा में आपके शरीर में बन रहे हैं, तो उस इन्फ्लामेटरी माहौल को जीता जा सकता है। अगर आपके दिन की शुरुआत एक प्रॉपर डोज ऑफ प्रोटीन, जो कि 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी बॉडी वेट, आप अगर 60 से 70 केजी के वजन वाले आदमी हैं, 70 किलो के हैं, क्या आप 70 ग्राम शुद्ध प्रोटीन ले रहे हैं? ऐसा प्रोटीन जो आपके शरीर में उतनी ही मात्रा में पहुंच रहा है। आप प्रोटीन के नाम पे जो भी सामान ले रहे हैं, वो आप जहां से आप लेकर आए हैं उसको खाने के लिए प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट के रूप में, या नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए जो चीज ले रहे हैं, क्या वो आपकी पूर्ति कर रहा है? मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने ऊपर से प्रोटीन को सप्लीमेंट नहीं किया तो उसके शरीर में खाने के टेबल में कभी भी प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं हो सकता। तो आपको प्रोटीन लेना है और आपको एडवाइस करना है। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है शरीर का। जितने भी हार्मोन, जितने भी एंजाइम्स बन रहे हैं वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं। आपके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें लिपिड और प्रोटीन होता है। तो सही मात्रा में आपको बढ़िया प्रोटीन चाहिए जो शरीर में सही मात्रा में पहुंचे। तो प्रोटीन का सोर्स हमारे पास अमेजिंग है। ये ऐसा सोर्स है जो आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनिक प्रोटीन मिलता है, जो प्लांट सोर्स का प्रोटीन होता है आपके शरीर में सही मात्रा में, जिनका पीटी एसिड स्कोर 1 है, जो सही मात्रा में एब्जॉर्ब होकर एसिमिलेट होकर आपके पास पहुंचता है, आपके बॉडी में पहुंचता है। आपके बॉडी का सारा ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम करता है। अगर आपको बीमारी से अपने आप को रोकना है, हर ऑर्गन सिस्टम को बीमार होने से रोकना है। ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो टिश्यू का बना होता है, हर टिश्यू एक सेल का बना होता है, और ज्यादातर जो क्रिया होती है शरीर के अंदर वो सेल के लेवल पे होती है। सेल को हेल्दी करना है तो सेल के अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट ठीक करना होगा। उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको प्रॉपर होना चाहिए। सेल की जो दीवार होती है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन सही मात्रा में होना चाहिए। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? आप शुरुआत करेंगे ढेर सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके खाने में नहीं है, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन को लेके शुरुआत करेंगे। प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। अब आप सोच के देखें, अगर आप समय के साथ, अगर कोई डायबिटिक है, इसका मतलब आप उसके शरीर में जो पैनक्रियाज है सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाना। इंसुलिन बनाने के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। इंसुलिन बनाने के लिए आपको सफिशिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक चाहिए। आपके शरीर में ज्यादातर जो डायबिटिक है वो इसलिए है कि उनके पैनक्रियाज में लो ग्रेड क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस हो रहा है।
कहते हैं कैल्सिफिक पैनक्रेटाइटिस इंडिया में है, जिसके कारण डायबिटीज इतना हो रहा है। शरीर के अंदर जो सूजन का माहौल है, जो इन्फ्लेमेटरी इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से पैनक्रियाज डैमेज हो रहा है। और इसको रोकने का क्या उपाय है? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। कहां से आएगा वो एंटीऑक्सीडेंट? क्या सोर्स है उसका? क्या आपके सब्जी और सलाद और फल से आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप अगर 9 सर्विंग्स ऑफ गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू कैन टेक, देन इट्स ओके, बट नन कैन टेक। इवन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शायद ये नहीं ले सकते। आपको सप्लीमेंट करना होगा अपने आप को। सप्लीमेंट कैसे करेंगे? गुड अमाउंट ऑफ माइक्रो, वॉट एवर you have excellent product like Nutralite Daily, excellent product like vitamin C, excellent product like Calmac D, excellent product like vitamin D plus. You take all those. For those in the nutritional intervention doses like vitamin D plus, you can break those products for a 15 day in a month. जिसका जॉइंट का प्रॉब्लम है वो पूरे महीने लेगा, जिसका प्रॉब्लम नहीं है वो 15-15 दिन का ब्रेक करके ले सकता है, या फिर लगातार 1-1.5 महीने लिया, फिर 1 महीने छोड़ा, इस तरह से ले लेंगे। अब इसके साथ क्या होता है कि जैसे कार्डियक हेल्थ की बात करते हैं, आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। कोई भी आदमी, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, अपना अगर लिपिड चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ होगा और एलडीएल भी बढ़ा होगा। एलडीएल एक खराब, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो आपके ब्लड को ज्यादा चिकनाई देता है और गाढ़ा बनाता है, क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ती है। कैसे कम करेंगे आप इसको? अगर आपका बढ़ा हुआ है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई दवा नहीं दी जा सकती। गाइडलाइन ये कहता है, मेडिकल गाइडलाइन कहता है कि किसी भी व्यक्ति जिसको और कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा है, उसको दवा नहीं देनी है अनलेस की ही हैज सम डिजीज ऑल्सो। आप कोई यंग आदमी जो 25 साल का है या 20 साल का है, उसका जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है वो कैसे कम करेंगे? उनको आप समझाएंगे, आप ओमेगा 3 लें। ओमेगा 3 का डोज आप अगर 6-7 कैप्सूल भी रोज खा रहे हैं, दैट इज नॉट एट पार ऑफ द मेडिकल डोज। अगर ट्राइग्लिसराइड किसी का बढ़ा हुआ है तो आप 1 से 2 ग्राम तक दे सकते हैं, 1200 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, 1.5 ग्राम तक दे सकते हैं। मैं 4 कैप्सूल रोज लेता हूं। दवा खाने से बेहतर है कि आप खाएं, आप उसको रोकें। दवा खाने की स्टेज, आपको पता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है वो आपके, अगर लगातार आप खाएंगे, आपको कोई बीमारी नहीं है और आपका केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको अगर स्टैटिन की थेरेपी पे दिया जाए तो अगले 5 से 6 महीने में आपके शुगर की स्थिति खराब हो जाएगी। अगर आप लगातार कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। एक बार डायबिटिक होंगे, आपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश की क्योंकि आप चाहते हैं कि हार्ट की डिजीज से मरे, बच जाए, वो बीमारी ना हो। आप साथ में हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करने के चक्कर में डायबिटिक हो जाते हैं, और एक बार डायबिटिक हो जाते हैं तो हार्ट की बीमारी नहीं, आपके सारे किडनी की बीमारी भी आपके उसके साथ आती है। तो आप सोच के देखें, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है और आपने दवा शुरू कर दी, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के आदमी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, मैं ये मेडिकल साइंस के ऑथेंटिक डाटा के हिसाब से कर रहा हूँ। आपको पता है ओमेगा 3 थेरापेटिक डोज में भी और न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट के डोज में भी ट्रायल किया गया है एटलीस्ट 7 से 8 बीमारी में। आप अगर डाटा निकाल के देखेंगे तो आपको एट्रियल फिब्रिलेशन एक बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक बीमारी है, स्ट्रोक एक बीमारी है, कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी है, और सो लॉन्ग सो फोर्थ। आप नेम द डिजीज, आई कैन गिव यू। अगर आप ब्रेन और हार्ट की बात कर रहे हैं और ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं तो ओमेगा 3 विल वर्क एवरीवेयर। आपको करना है कि आप बीमार नहीं है तो बीमार नहीं होना चाहते हैं, आपको ओमेगा 3 लेना है। जितनी डोज में आप ले सकते हैं ले, आप जितना भी लेंगे आपके लिए बेहतर है। एक बारी आप न्यूट्रास्यूटिकल लेने लगते हैं तो आप प्राइम हो जाते हैं कि आप गलत चीज ना करें। पहला फायदा ये है न्यूट्रास्यूटिकल। अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर होंगे तो पहला फायदा ये होगा कि आप बैड न्यूट्रिशन के बारे में भी अवेयर हो जाएंगे। आप अगर ओमेगा 3 ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप ट्रांस फैट नहीं लेंगे, आप तला हुआ, बार बार तला हुआ भुना हुआ चीज नहीं लेंगे। तो ओमेगा 3 को बिग वे में प्रमोट करना चाहिए सोसाइटी में। हर बंदे को बताना चाहिए कि ओमेगा 3 कैसे काम करता है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हर सेल का बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके इम्यूनिटी का बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके वास्कुलर हेल्थ का बिल्डिंग ब्लॉक है। कमिंग टू द डायबिटीज को कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्या तरीका है? आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसको आप ले सकते हैं। मैं आप एग्जांपल दूंगा, मेरे साथी हैं तिमिर प्रकाश, वो मेरे अंदर एबीओ भी हैं, उनका HbA1c बढ़ा हुआ था 7.8.7, 7.6 was his HbA1c। शुगर नापने के लिए एक जांच होता है जो 3 महीने का शुगर बताता है आपको, 3 महीने तक ऐसा शुगर था आपका। उनका पहला मैंने एक ट्रायल के रूप में उन पे किया, उनका HbA1c अभी से 1.5-2 महीने पहले था 7.6। 6.5 से HbA1c ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं कि शुगर हो गया। मैंने उनको कहा कि तुम मधुनासिनी 2 टैबलेट सुबह शाम लेना शुरू करो। दिस इज नॉट रिकमेंडेड एनीवेयर, आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं कह रहा हूं कि रिकमेंडेशन विल कम
कब आएगा? जब न्यूट्रिशनल के लिए कोई गाइडलाइन बन रहा हो। क्या दुनिया भर में कोई संस्था ऐसी है जो न्यूट्रिशन पे गाइडलाइन बना रही है? नहीं। गाइडलाइन किस पे बनाया जाए? दवाइयों पे। दवा कब लेंगे? जब हम बीमार होंगे। बाकी लोग जो 90% लोग जो बीमार नहीं है उनके लिए गाइडलाइन कौन बनाएगा? देयर इज नो गाइडलाइन फॉर द न्यूट्रिशन। नो डॉक्टर्स इज गोइंग टू स्टडी न्यूट्रिशन इन एनी वे। एक चैप्टर में न्यूट्रिशन पढ़ा होता है, उसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। आपने किताब भी पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा कि जो आपका डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जान रहा है, वो आपको मार रहा है स्लोली। मैं दावे के साथ कहता हूं, डॉक्टर दूसरे को तो नहीं, अपने आप को भी मार रहा है। Those doctors who are working for 8 to 10 hours daily, not taking proper food, they are killing themselves. ये बीमारी, हार्ट की बीमारी और हृदय की बीमारी ऐसी बीमारी है, शुगर की बीमारी ऐसी बीमारी है। You find the doctor, you name the doctor, you will find that those are suffering from the diabetes and heart disease also. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिशन पढ़ा नहीं था। तो पहला विक्टिम कौन होगा? वही होंगे जिनको पढ़ना चाहिए था, उन्होंने पढ़ा नहीं। मैं कहता हूं कि आप भी पढ़ें। आप डॉक्टर नहीं है, आप पढ़ें, आप समाज में बदलाव लाएंगे। डॉक्टर की संख्या कम है लेकिन आपकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप अलग अलग आयाम के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, सब एडुकेटेड लोग हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और मैं कहता हूं, यू कैन से ऑथेंटिकली दैट इफ यू आर यूजिंग ओमेगा 3, दैट विल लीड टू अ स्टेट वेयर यू विल नॉट रिक्वायर स्टैटिन एनीमोर। स्टैटिन आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। एटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन जो दवा है कोलेस्ट्रॉल कम करने की, वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा और आप बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आप हार्ट की बीमारी से दूर रह पाएंगे। प्रिवेंटिव के गाइडलाइंस बहुत कम है। हर बीमारी के इलाज में, हर बड़ी किताब जो होती है मेडिसिन की और कार्डियोलॉजी की, उसमें हर बीमारी के इलाज में पहला लाइन लिखा होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट मॉडिफिकेशन। लेकिन जब आप डाइट मॉडिफिकेशन एंड लाइफ स्टाइल की गाइडलाइन की बात करेंगे, देयर इज नो रैंडमाइज्ड ट्रायल। सच कुछ रैंडमाइज्ड ट्रायल हैं जिसके आधार पर गाइडलाइन बनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर रैंडमाइज्ड ट्रायल है नहीं। थोड़े बहुत रैंडमाइज्ड ट्रायल है जिसके आधार पर गाइडलाइन बनती है, इसलिए न्यूट्रिशन के गाइडलाइन स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आपको पता है जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक आपका न्यूट्रिशन ही है, वही आपको स्वस्थ रख सकता है। आप अब मूव करते हैं कि लीवर डिजीज के बारे में। आप लीवर की डिजीज, ज्यादातर लीवर की जो बीमारी है उसके लिए आपको बीमारी के मूल कारण को खत्म करना होता है। लीवर के बीमारी के इलाज में अगर आप इन्फेक्शन को छोड़ दें, लीवर के इन्फेक्शन को छोड़ दें जिसमें हेपेटाइटिस आता है, उसके अलावा आपको लीवर को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयां नहीं है। नॉन स्पेसिफिक हेपेटाइटिस होता है। अभी जो पूरा देश, पूरा दुनिया एक फैटी लीवर नाम की बीमारी से जूझ रहा है। आपको आश्चर्य होगा, इस फैटी लीवर के लिए बहुत सारी मेडिसिन है नहीं और गाइडलाइन कोई ऐसा भी नहीं है कि जो ये दवा देंगे तो फैटी लीवर खत्म हो जाएगा। उसका इलाज क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? आप एक्टिव हो जाते हैं, आप रोज ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। एक बात ये होगी, डाइट मॉडिफिकेशन क्या करेंगे हम? आप जो कुछ भी एमवे में सिखाया जाता है आप वो सब करना शुरू कर देंगे। और जो दवा दी जाती है आपके पास है, मिल्क थिसल एक दवा है जिसका जो प्लांट है उसी से सिल्मेरिन निकलता है। उसके अंदर आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि लिवर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने उसको लेना शुरू कर दिया। आपने फैट को, सैचुरेटेड फैट की जगह पे ओमेगा 3 कंटेंट बढ़ा दिया अपने डाइट में। आप तला हुआ भुना हुआ कम खाने लगे। आपने मल्टीविटामिन ज्यादा ले लिया और एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में ज्यादा हो गया। प्रोटीन रिच डाइट लेने लगे। आपका शरीर का एनवायरमेंट ऐसा होगा कि फैटी लिवर का ग्रेड कम होने लगेगा। आप मिल्क थिसल ले रहे हैं, ओमेगा 3 ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, आपके शरीर में ऐसा बदलाव होने लगेगा कि आपका फैटी लिवर का ग्रेड चेंज होने लगेगा। कमिंग टू द अनदर डिजीज, लंग डिजीज की बात कर रहा हूं। आप मेगा डोज में विटामिन सी दें। विटामिन सी एडवोकेट करें मेगा डोज में। कोई भी ऐसा आदमी जो इनहेलर ले रहा है, जो एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक जिसको खांसी बार बार होती है, सर्दी बार बार होती है, सांस में दिक्कत होती है, इनहेलर लेना पड़ता है। पता है ब्रोंकियल आजमा, जो सांस की बीमारी, दमा की बीमारी और सीओपीडी, ये दोनों ऐसी बीमारी है जिसमें एलर्जी की वजह से सांस की नली में सूजन होता है। मैंने बोला द बेसिक प्रिंसिपल किसी भी बीमारी का होता है कि उस ऑर्गन में सूजन होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना। उसको रोक अगर पाएंगे आप, इन्फ्लामेशन का कैस्केड कॉमन कैस्केड होता है, कॉमन पाथवे होता है। कारण कुछ भी हो, इन्फ्लामेशन में वही फ्री रेडिकल निकलते हैं जो हर ऑर्गन में निकलते हैं। अगर आप फ्री रेडिकल को टैकल कर लेंगे तो आपका ऑर्गन सिस्टम प्रिजर्व हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको ब्रोंकियल आजमा है तो इनहेलर नहीं लेना चाहिए, लेकिन और क्या करना चाहिए कि आपका इनहेलर आगे इनइफेक्टिव ना हो जाए। अगर आप 10 साल का कोई बच्चा है जिसको एलर्जी की समस्या है तो क्या ऐसा करेंगे जो आगे वो उसकी बीमारी बढ़ के एलर्जिक एयरवे का रूप ना ले ले। आप स्टार्ट विद लो डोज, हाई डोज ऑफ विटामिन सी, यू गिव VMS, वसा कम्युनिटी सुरसा जो होता है, जो आपका आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। अदर देन दिस, complete the nutrition with good amount of protein because protein is needed everywhere. Good amount of protein
and you give supplement with all the एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल। आपके पास एंटीऑक्सीडेंट केवल न्यूट्रलाइट डेली नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, एक प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना चाहिए वो चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि जो बाजार में सब्जी मिल रही है और फल मिल रहा है उसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल कितने पावरफुल होंगे आप समझ सकते हैं। जिस कद्दू को इंजेक्शन के साथ पैदा किया गया उस कद्दू में कितने न्यूट्रिशन मिल जाएंगे आपको पता होना चाहिए। जिस करेले को आप खा रहे हैं जिसके ऊपर पेंट लगा हुआ है उस करेली से आप कितने हेल्दी हो जाएंगे आपको पता है। ये फैक्ट है लाइफ का, इसको समझाना होगा, आपको समझना होगा, खुद को समझाना होगा, लोगों को समझाना होगा। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे समाज का। एक जॉइंट का पेशेंट जिसके घर में एक 60 साल की महिला है जिसको जॉइंट का प्रॉब्लम है, जितनी बार वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है उसको दवा दी जाती है, दर्द की दवा दी जाती है, कुछ लगाने की दवा दी जाती है और कुछ स्टेरॉइड दिया जाता है। कई बार तो जॉइंट में इंजेक्शन दिया गया। ये स्टेरॉइड क्या है, ये दर्द की दवा क्या है? दर्द की दवा जहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है शरीर में, जहां पे सूजन है, वहां पे जो दर्द कराने वाले जो सब्सटेंस निकलते हैं उसको काउंटर करता है। वो सूजन को नहीं रोकता है, सूजन को पार्सली रोकता है। सूजन क्यों हो रहा है, इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है उसको नहीं रोकता है, वो जो एंड प्रोडक्ट है उसको काउंटर करता है, दर्द का अनुभव ना हो। आप स्टेरॉइड कह देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। कोविड के टाइम में सबने सुना होगा कि स्टेरॉइड का दे दो, स्टेरॉइड क्यों हेल्पफुल था? क्यों? उसने सूजन को कम किया। मैं कह रहा हूं आप अपने शरीर को प्रिपेयर करिए कि आपके शरीर का इन्वायरमेंट इन्फ्लामेटरी नहीं हो। कैसे प्रिपेयर करेंगे? ज्यादातर प्रोडक्ट जो मल्टीविटामिन के हैं हमारे पास वो उस ऑर्गन सिस्टम को इन्फ्लामेशन से बचाते हैं। आप न्यूट्रलाइट डेली, फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉन्सेंट्रेट, दे आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स एंड वन शुड प्रमोट लाइक एनीथिंग। अब आते हैं आपको जॉइंट के लिए। जॉइंट में ज्यादातर जॉइंट जो उम्र के साथ खराब होते हैं, एक उम्र के बाद जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बोन के अंदर जो कैल्शियम डेंसिटी है कम होने लगता है, बोन्स का मिनरलाइजेशन कमजोर होता है। कैसे मेंटेन करें बोन हेल्थ को? आप ज्यादातर लोग यहाँ पे जानते होंगे कि एमवी के अंदर जो प्रोडक्ट है, पहले जो प्रोडक्ट थे और अब जो प्रोडक्ट है, इसमें दो तरह के प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है जिसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में है, कैलमैक डी, लो डोज में हर चीज अवेलेबल है उसमें। एक प्रोडक्ट है विटामिन डी प्लस जिसमें थेरापेटिक डोज में है। आप विटामिन डी इज इक्विवेलेंट टू थेरापेटिक डोज जो चाहिए किसी आदमी को 17 से 2000 यूनिट विटामिन डी और विटामिन के और लिकोरिस, और इसके साथ अगर आप कैलमैक डी को सप्लीमेंट करते हैं और ग्लूकोजामिन देते हैं जो कार्टिलेज हेल्थ और बोन के जॉइंट या अंदर के हिस्से को और मसल के जहां पे जुड़ता है उसके हिस्से को मेंटेन करता है, तो आप पाएंगे कि 6 से 8 हफ्ते में उसके जॉइंट हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। विथ दिस सप्लीमेंट एंड सम एडेड एक्सरसाइज, जितना भी वो कर पाए जॉइंट को बचाते हुए, उनके बोन हेल्थ में इतना बदलाव आएगा। साथ साथ बेसिक न्यूट्रिशन जरूर देना है उनको। क्यों? बेसिक न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपका बाकी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। आपको बेसिक न्यूट्रिशन के साथ सप्लीमेंट करना है। आपको अगर आप किसी एक कंपोनेंट को केवल ठीक करेंगे तो आउटकम जो होगा एक्सेलेंट नहीं होगा। आपको मल्टी न्यूट्रिएंट्स के सफिशिएंट डोज, प्रोटीन का सफिशिएंट डोज और करेक्शन ऑफ द प्रोटीन फैट का कंजम्पशन। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो 3 बेसिक कंपोनेंट है, उसके अलावा विटामिन और मिनरल्स हैं, उसमें से प्रोटीन को सप्लीमेंट करके ऑप्टिमल तक पहुंचाना है। फैट को ठीक करना है, उनके हैबिट में तला हुआ भुना हुआ चीज निकाल देना है, डब्बा बंद चीज को निकाल देना है और ओमेगा 3 को ऐड कर देना है। मल्टी न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट मात्रा में जोड़ देना है और फिर स्पेसिफिक चीजों को जोड़ना है। लीवर वाले ज्यादा है तो उनको मिल्क थिसल ज्यादा बढ़ा देना है, नेचुरल बी बढ़ा देना है। अगर जॉइंट का प्रॉब्लम है तो कैलमैक डी, विटामिन डी प्लस और ग्लूकोजामिन को बढ़ा देना है। इस तरह से बढ़ा के आप अगर करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द गुड रिजल्ट्स आर देयर। एक मोटिवेटेड कस्टमर जो सेटिस्फाइड होगा, ही विल ब्रिंग सो मेनी कस्टमर एंड ही विल टीच अदर आल्सो दैट कि ये ठीक हुआ था इसके करने के बाद। अब वो दर्द की दवा नहीं लेगा तो उसकी किडनी बच जाएगी। अब आते हैं रीनल हेल्थ पे। रीनल हेल्थ पे, यू नो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द किडनीज एक्सक्रीट प्रोटीन बाहर निकलना शुरू होता है। अगर आप शुगर के लिए हेल्प दे रहे हैं और प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में है आपके शरीर में तो आपका रीनल हेल्थ भी सुधार होता है। आप प्लांट प्रोटीन लेते हैं, एनिमल प्रोटीन कम लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड भी फॉल करने लगता है। जॉइंट हेल्थ हो गया, लिवर का हेल्थ हो गया। अब आप समाज में बहुत सारे लोग होंगे जो कि हार्ट के किसी न किसी कारण से हार्ट की मांसपेशी कमजोर की, वो दवा खा रहे होंगे हार्ट की। आप उनको कहें कोएंजाइम क्यू लेने के लिए। कोएंजाइम क्यू एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका थेरापेटिक डोज भी बहुत ज्यादा है। आप
कम से कम प्रिवेंटिव डोज में दे। कोएंजाइम क्यू हार्ट की मांसपेशी को मजबूत बनाता है। कार्डियोमायोपैथी जो मांसपेशी कमजोर होने की बीमारी है उसमें बहुत मदद करता है। इस तरह से आप पाएंगे कि कोएंजाइम क्यू उनके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको सप्लीमेंट कर रहा है। वायरल फीवर पर कई लोग कोविड के बाद उनके हार्ट की मांसपेशी कमजोर हो गई, उनके खून की नली में कोई ब्लॉकेज नहीं है, उसके सांस फूलने की वजह से उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इकोकार्डियोग्राफी कराया, उसमें हार्ट उसका कमजोर है। आप कोएंजाइम क्यू उसको प्रमोट करें। कोएंजाइम क्यू थेरापेटिक भी है और प्रिवेंटिव भी है और न्यूट्रास्यूटिकल इंटरवेंशन के लेवल पे भी काम करता है। आप कोएंजाइम क्यू को बिग वे में प्रमोट करना चाहिए। देखिए, अगर आप गाइडलाइन का इंतजार करेंगे तो गाइडलाइन विल नॉट कम। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी द होल हेल्थ इज कंट्रोल्ड बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड दे विल टॉक अबाउट only medicine. But time is changing. Now they are also thinking in terms of the nutraceutical. They are coming with the nutrition. And now once the approach of the people will change towards the nutrition and nutraceutical, they will be forced to have study on the nutrition, and we will have guidelines in coming 20 to 25 years. 20 to 25 years. 20 to 25 years. क्या आप 25 साल तक इंतजार करना चाहते हैं उस गाइडलाइन का, या आप अपने लेवल पर तैयार करेंगे अपने आप को? आपके पास अगर आप न्यूट्रिशन के पेपर्स को जाएं, आप वेब पे सर्च करें, यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, रिसोर्सेज आर देयर वेयर न्यूट्रिशन इज वर्किंग लाइक एनीथिंग। लेकिन आप इस्तेमाल करने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको खुद इतना नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं। अपने नॉलेज को बढ़ाना है और एमवे अपनी तरफ से कोशिश करता है न्यूट्रिशन के बारे में आपको इन एंड आउट बताने का। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें। देयर आर सो मेनी इंडिकेशन। जब विटामिन सी के से होने वाली बीमारी के बारे में नहीं पता था, उसके पहले क्या विटामिन सी नेचर में नहीं था? हाँ, लेकिन जब पता चला कि विटामिन सी की कमी की वजह से ये सब बीमारी हो रही है और जहाज में लोग मर रहे हैं, तो विटामिन सी एज ए थेरापेटिक यूज होने लगा। क्या विटामिन पहले नहीं थे? फाइटोन्यूट्रिएंट्स पहले नहीं थे? लोग नहीं जानते। साइंस डिस्कवरी नहीं होती है साइंस में। हम लोग वी आर एबल टू नो एक्नॉलेज दैट दीज थिंग्स आर देयर, और ये रेमेडी हमारे पास थी पहले। जब हम जान जाते हैं तो उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि नॉलेज भरा पड़ा है, आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं, सब साइंटिफिक है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। और न्यूट्रिशन will overtake the curative medicine in coming years। and अब इस बात को मार करें कि जो हेल्थ मेंटेन करने की बात है वही प्रायोरिटी होगा। बीमार लोगों की सेवा जरूरी है, बीमार लोगों का इलाज जरूरी है, लेकिन जो लोग हेल्दी हैं उसका हेल्थ मेंटेन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बीमार की सेवा के लिए भी हेल्दी लोग चाहिए होते हैं। समाज में एक परिवार में एक अर्निंग मेंबर जब बीमार हो जाता है तो बाकी जो हेल्दी लोग हैं उनको जो अर्निंग मेंबर है उनके हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं आप इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ योर सोसाइटी एंड योर फैमिली इज मेंटेन, यू मस्ट मेंटेन द गुड हेल्थ। हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी। आजादी पाना, आज आजादी की पूर्व संध्या पे हम लोग मिले हैं, तो बताता हूँ क्या आजादी पा लेना काफी था हम लोगों के लिए, या आजादी को मेंटेन करना ज्यादा जरूरी था? हैविंग फ्रीडम इज अनदर थिंग, बट मेंटेनिंग द फ्रीडम इज एक्चुअल थिंग। हैविंग फ्रीडम इज अनदर थिंग, एम्पावरिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने घर को बीमारी से बचाना चाहते हैं, अब बीमारी अगर हो गई उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये अलग बात है कि उसको सही इलाज होना चाहिए। लेकिन आजादी, मुक्ति बीमारी से मिल जाना, आजादी पा लेना काफी नहीं है। आपको आजादी को मेंटेन करना होगा, और मेंटेन करने के साथ साथ अपने आप को इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर भी करना पड़ेगा। आपका समाज में आपके पैसे की इज्जत होनी भी जरूरी है। आप अगर पैसा, मैं एक विचित्र प्रोफेशन से हूं, विचित्र प्रोफेशन इसलिए कर रहा हूं कि मेरे घर में जो पैसा आता है वो बीमार लोगों के जेब का पैसा होता है। आई जस्ट हेट दैट। मुझे घरना है उस पैसे से, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे उसी पैसे से अपना घर चलाना पड़ता है। मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूं कि आई कैन रन माय फैमिली अदर फ्रॉम मनी व्हिच कम्स फ्रॉम अदर देन माय कोर प्रोफेशन। द डे विल कम व्हेन आई विल डेडिकेट all my earning from the medical science to the people of Bihar and people of Bhagalpur and people of India, and I will run the hospital on a basis where there will be no profit from that organization. That will run as a no profit no loss organization. Thank you. God bless everyone. Come join this journey and bring hope to the people and change the world. Thank you. जबरदस्त। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं, सभी को अनम्यूट का पावर दे दिया गया है, और जोरदार